Welcome to the AITR Alumni Podcast, a space where we bring inspiring voices, remarkable journey, and transforming experience from our very own alumni community. So, as it's our first couple alumni podcast, let me introduce to our esteemed guests, Mr. Yash Bhatia and Mrs. Mallika Khosla. Yash Bhatia is a research assistant at Hanover Center for Optical Technology at Leibniz University of Hanover, Germany, pursuing his PhD in planar polymer optical network for 2D strain sensing. He holds a BE in Electronics and Communication Engineering from AITR batch 2013 till 2017 and an MSc in Nanoscience and Nanotechnology from University of Siegen, Germany. His research focuses on optical sensing, thermal imprinting, and photonics devices like with multiple publications in prestigious venues like SPIE Photonics and Springer Nature. Mallika Khosla is a system testing engineer at Hilitet International at Stuttgart, Germany. She completed her BE in Electronics and Communication Engineering from AITR batch 2013 till 2017 and her MSc in Nanoscience and Nanotechnology from University of Siegen, Germany. With a rich background in research at institutions like DESY, German Electron Synchrotron, and Leibniz Institute for Crystal Growth, her expertise spans ferroelectrical materials, solid-state physics, and advanced data analysis. Together, they represent an inspiring journey from India to Germany, balancing demanding careers in advanced technology while building a life partnership. Welcome you, Yash and Malika. Thank you so much. Thank you for having us. Most welcome. My first question is, you both studied at Acropolis during 2013 and 17. How did this phase shape your foundation in engineering and research thinking? Okay, thank you for the introduction, Pragya. Mm, so we started in at Acropolis as complete freshmen, where we were exposed to many opportunities and also to a big campus with so many laboratories and courses. And cut to now, where we are doing our research and when we are doing our jobs. It has definitely shaped us as engineers. In the first place, हम लोगों को जो भी हम लोग जिस भी तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है एक्रोपोलिस का, क्योंकि वही सबसे पहला संस्था है जो जहाँ पे हम जाके पढ़ना चालू किए, जहाँ से हमें इतना कुछ सीखने को मिला। और आज भी जब हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ भी पढ़ा हुआ, तो वो एक्रोपोलिस से ही पढ़ा हुआ आता है। तो नेचुरली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले पाए और अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। एंड रिसर्च थिंकिंग, सो हम लोग इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा वो सबसे पहला पढ़ाव था हमारे करियर में। रिसर्च में इतना एक्रोपोलिस की आई डोंट थिंक इतना कंट्रीब्यूशन हमारे उसमें रहा, क्योंकि रिसर्च हमारी लाइफ में लेटर उस पे आया, लेटर जर्नी में आया। पर एक्रोपोलिस में एक्चुअली हम लोगों ने इनिशियल इंडस्ट्रियल रिसर्च स्टार्ट किया था। हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट थे कि हमें एक्रोपोलिस ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल बैचलर थीसिस करने का मौका दिया। हम लोगों का, यश और मेरा प्रपोजल था उस समय कि हम लोग बाहर जाके इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रिसर्च करें और थीसिस लिखें। और ये उन्होंने स्वीकार किया और इसके लिए हम बहुत आभारी रहे, क्योंकि वो आज भी हम बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम उस चीज़ का नाम लेते हैं कि हमने पेस्ट्रॉनिक्स कंपनी में बैचलर थीसिस किया था Internship, it was internship as well. और थीसिस भी किया था।
एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है बताना कि उस समय ये बहुत ही अनपॉपुलर था कि बाहर जाके काम करना। और आज हम जब जानते हैं पढ़ाई उसके बारे में पढ़ते हैं एक्रोपोलिस के बारे में, तो हमें पता लगता है कि अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है। तो दैट वाज ये बहुत अच्छी बात है। और आगे आप यश जैसे बताएंगे। लाइक आई वुड एग्री टू मोस्ट ऑफ इट, वो जो मलिका ने कहा है। जैसे एक्रोपोलिस हमारे बिगनिंग में जो हमने बेस जो हमारा था, दैट मेड लाइक एक्रोपोलिस मेड दैट बेस स्ट्रॉन्ग। अभी पर जैसे मैं आई फॉलो एक्रोपोलिस के पेजेस ऑन डिफरेंट व्हाट दे आर डूइंग, लाइक आई फॉलो गौरव चैतन्य सर ऑन लिंक्डइन, सो आई नो व्हाट ही इज ब्रिंगिंग टू द इंस्टीट्यूट। मैं देखता हूँ कि लाइक बहुत सारे रिसर्च फैसिलिटीज में आपको जाने को मिलता है, या फिर आपको ऐसे उस तरह आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि आप वहाँ पे करो। एट आवर टाइम ऐसा नहीं था ज़्यादा। तो लाइक मलिका सेड, हमने बाद में वो किया मास्टर्स के टाइम पे, बिकॉज वी वर exposed to that kind of culture, that kind of things which we could do. और फिर बाद में आई थिंक Acropolis was the base for us, so it gives us good exposure in the beginning. Sir, Yash and Malika, you both said that your journey from Acropolis was too good. I want to know that how you transferred studying abroad, how you think of that कि आप एक्रोपोलिस से निकल के बाहर जर्मनी में जाके आपको करना है, ये मोटिवेशन कैसे है? एक्चुअली इसका मोटिवेशन एक सेटबैक से आता है, क्योंकि उस समय एक्रोपोलिस में सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज बहुत आती थी हम्म। प्लेसमेंट्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनीज ना के ऑलमोस्ट, बराबर थी। ना के यस, बराबर थी। अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोगों का ये तो क्लियर था कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनना चाहते, बिकॉज हमने 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की कोशिश की है। तो वो तो क्लियर था। तो इसलिए हम लोग ने प्लेसमेंट्स तो हम लोग नहीं कर ज्वाइन कर पाए। हम लोग ने ट्राई किया, बट बिकॉज इट वॉज नॉट आवर कॉलिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब आगे हम लोगों को बाहर देखना पड़ेगा। और जैसे आप स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं, आपको आपको बहुत कम पता होता है कि क्या चल रहा है। वैसे ही एक और पर आपकी जीवन में एक और बार ऐसा मौका आता है जब आपको इतना बड़ा खुला मैदान है और आपको पता नहीं आप कहाँ जाओ। तो और काउंसलर्स थे एक्रोपोलिस में, जिनके कारण भी हम थोड़ा बहुत सोच पा रहे थे। तो जैसे हमारे एक थे अतुल भरत जी। उन्होंने काफ़ी बहुत सपोर्ट किया प्लेसमेंट्स के दौरान। उनका जो वो सेल था, प्लेसमेंट सेल, आई थिंक इट वाज या कॉल्ड। सो वहाँ पे बहुत काउंसलिंग जो भी थोड़ा बहुत कर पाते थे वो, उससे हमें बहुत प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। पर आगे जाके एक्चुअली मेरा कनेक्शंस है जर्मनी में। तो मेरे जो अंकल हैं वो जर्मनी में हाइडल यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में डीन रह चुके हैं। सो मुझे पता था वहाँ रिसर्च अच्छी है और वहाँ पे फैमिली भी है, तो थोड़ा बहुत उससे मुझे पता था। बट मैंने जैसे ही इंजीनियरिंग ख़त्म करी तो मैंने तो अपने सामान बांधा और मैं तो चली गई पुणे। अपना बैचलर्स ऑफ आर्ट्स मैंने कंप्लीट किया था कथक में, बैचलर्स इंजीनियरिंग के साथ, और मुझे मास्टर्स करना था। मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था, मुझे सिर्फ डांस कंप्लीट करना था अपना फॉर्मल डिग्री। तो मैं तो वहाँ चली गई थी। आई थिंक जब यश से मेरी बात हुई, तो यश वॉज मोर इंटरेस्टेड टू स्टडी फर्दर। मुझे पीएचडी करना था। आई डोंट नो व्हाई एट दैट टाइम, बट मुझे एक पीएचडी करना था। आई थिंक एट दैट टाइम मे बी आई जस्ट wanted to prove that I'm worth it. But while pursuing PhD, while working through masters and PhD, I thought like it's
I just left that thing behind because अब मुझे पता है अगर if you do up doing PhD, then you cannot do for others. You have to do it for yourself. Otherwise, you won't be able to survive. So he came to me and we talked about it, और इसको इंटरेस्ट था यश को, so हम लोगों ने मेरी फैमिली में ही बात करी, और बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने कोर्स का पता लगाया, और काफ़ी एक साल लगा हमको सब चीज़ें समझने में, क्योंकि यहाँ के कुछ डेडलाइंस होते हैं यूनिवर्सिटी में, ये 2 और सेमेस्टर्स होते हैं जब यहाँ तक हम समर। लोग ये समझ पाए कि अब हम यही करेंगे आगे, यश यश जाना चाहते हैं, तो यश जाना के लिए तैयार हैं, तो तब तक बहुत सारी डेडलाइन जा चुकी थी। फिर उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, पर पहली बार मुश्किल लगता है। तो फिर एंड ऑल्सो सॉरी, एंड ऑल्सो जब हम गए थे तो वहाँ उस टाइम पे कोई ऐसे हेल्प नहीं थी, या अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। बट जब हम गए थे तब उस टाइम पे इट वाज नॉट सो पॉपुलर टू गो टू जर्मनी। यूएस वाज क्वाइट पॉपुलर, बट जर्मनी में अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे ट्यूशन फ्री एजुकेशन होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपको बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे अलग अलग चीजें काम करने को मिलता है। बेसिकली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ यू कैन लिव इन हम्म। जर्मनी। तो काफ़ी सुविधाएं हैं। तो वहीं से आया है कि अब यश को जाना है, तो हम लोगों ने तैयारी की, फंड्स किए, और यश को भेज दिया। तो यश चला गया, और उसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल भी गई, और काफ़ी अच्छा कोर्स, इंजीनियरिंग भी रिलेटेड है, नैनो टेक्नोलॉजी जो उसका पार्ट है, जो उसमें माइक्रो नैनो फैब्रिकेशंस से रिलेटेड कोर्सेज थे। तो काफ़ी एंड हम लोगों ने पेस्ट्रॉनिक्स में काम किया, वो हमें बहुत काम आया, क्योंकि वहाँ पे नैनो फैब्रिकेशन हमने फर्स्ट टाइम देखा था, एसएमडी फैब्रिकेशन। और अब हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे वो कैसे बना रहे हैं सेमीकंडक्टर, वो हम देख रहे हैं। तो उसके काफी पहले भी जब जब मैं जर्मनी जाने के पहले भी आई यूज टू वर्क फॉर राजेश मूर्ति जी। उनके यहाँ पे आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आफ्टर माय बैचलर्स, आई वेंट टू हिम एंड देन आई वाज वर्किंग देयर एंड ही हेल्प मी अ लॉट। ही इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रीलांसर। ही इज अ फ्रीलांसर। ऑल्सो वी मेट हिम एट द पेस्ट्रॉनिक्स। सो मैं यही से समराइज कर रही हूँ कि कैसे हम लोग एक स्टेप लेते हैं, और हम लोग भी उस समय इतना सोच समझ, हम लोग भी नाइव थे जब हम लोग आए मैक्रोपोलिस में। आई थिंक आपको फील हो रहा होगा कि हम लोग क्या फील कर रहे थे उस समय, राइट? सो Yeah. वो धीरे धीरे हम लोगों का वो पाथ का होता गया कि पेव होता गया, और हम लोग आगे बढ़ते गए, और बट एक रोड मैप हम लोगों ने अब बना दिया है, और आज हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं इस बारे में, तो आप खुल के पूछो, हम बताएंगे सब। फिर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आपको आना हो तो। ओके ओके। सो जैसे आप दोनों ने बोला कि आप लोगों ने मास्टर डिग्री जर्मनी में करी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी पे, तो क्या हम्म। ये कोइंसिडेंस था कि ऑलरेडी प्लान था कि यहाँ से एक ही जगह एक ही यूनिवर्सिटी, हाँ। और ये सो आपकी एकेडमिक और पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे और आगे बढ़ाता गया? yes, definitely it's not a coincidence. I mean, of course it's a coincidence. Sorry. Um, actually, I think I will answer this. So no. it was a plan to call her to Germany. I wanted her to be near me in Germany. I mean, in Germany, if you are in the same country, it's fine, completely fine. At least you can meet. But in India and Germany, it was too far. And उसके बाद she started applying, and we were fortunate enough कि उसको वहीं उसी सेम यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स में मिल गया। And she also got in different better universities, I would say, but she chose this one because she could be closer to me. Because I found a better person. I think because मैं 2 साल पुणे में थी, मास्टर्स ऑफ द आर्ट्स कथक कंप्लीट कर रही थी। उस समय मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि यश यूज्ड टू डिस्कस हिज असाइनमेंट्स विद मी, फिजिक्स के असाइनमेंट्स,
और अब हम लोग मिलके सॉल्व भी कर लेते थे। तो फिर यश ने सजेस्ट किया, अब तुम पूरा कोर्स मॉड्यूल ही सॉल्व करते हो तो पढ़ ही लो, फुल फ्लेजेड पढ़ाई कर लो। So I thought this was, I mean, also because time difference, बहुत सारी personal relationship में भी हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो आई सेड ओके लेट्स ट्राई। और बिना बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए मैंने सिर्फ अप्लाई किया, ज़्यादा मतलब सिंसियरली भी अप्लाई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। और बस बिकॉज वो मेरे हो टाइम गया। पे ऑलरेडी वो मेहनत कर चुकी थी, बिकॉज शी वॉज रनिंग विथ मी टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जैसे DAAD करके होता है यहाँ जर्मन, आपको अप्लाई करना होता है, तो यू कैन फाइंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड दे आर रियली हेल्पफुल। एनजीओज है वो डैप हाँ, करके। तो इसलिए मलिका ऑलरेडी मेरे साथ वो जगह भाग चुकी थी, तो उसको पता था प्रोसेस क्या है। या सो एग्जैक्टली मेरे लिए रोड मैप था। और मेरी जर्नी जर्मनी आने की, मास्टर्स करने की बहुत इजी रही है बिकॉज यश वाज देयर टू हेल्प। मुझे ना घर ढूंढना पड़ा, ना जो कि बहुत बड़ा वॉर है यहाँ पे, घर ढूंढना, रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपके लिए बहुत बड़ा वर्ल्ड ओपन हो जाता है और आपको टूल्स नहीं है पता कि आप कैसे वहाँ पे And मैनेज करो। when you come for the first time, it's I would say I was little afraid, because कोई रिलेटिव्स नहीं है ऐसे, कोई लैंग्वेज अलग है टोटली, जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश बोलते हैं लोग बट दे प्रेफर मोर जर्मन। तो मेरे लिए इट वाज क्वाइट अ बिग स्टेप टू टेक, but I knew somehow that she was there, my parents were there to help me, to support me emotionally. So I think I did this सो because of बट them. लेट्स गो टू द क्वेश्चन एकेडमिक। यश ने मुझे कोई मदद नहीं करी क्योंकि मुझे अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जो भी है वो अलग रखना पसंद है। सो आई वुड नॉट टेक हेल्प, एक्चुअली यू वुड ट्राई बट आई वुड नॉट टेक हेल्प। और पर्सनली हम लोगों का ऑब्वियसली हम लोग बहुत एक स्टेप और स्टेज अप आ गए। अब हम लोगों को, हम लोग सीरियस हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इवेंचुअली वी वांट टू गेट मैरिड। So of course that really shaped. But academically, also Yash stayed in University of Siegen, completed his masters, while I moved. I after 1 year, मैं हैम्बर्ग शिफ्ट हो गई थी जीगन से। जीगन नॉर्थ वेस्ट में एक शहर, छोटा सा शहर है, यूनिवर्सिटी सिटी है, और हैम्बर्ग नॉर्थ में है। तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था, तो हम लोग फिर लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए। और क्योंकि मैं ड्यूरिंग कोविड टाइम हम लोगों ने 1 साल साथ में पढ़ाई करी। और जैसे ही, आई थिंक वो भी कोविड टाइम ही था जब 2020। तो यहाँ पे कोविड इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, आई हैव हर्ड कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी, यहाँ इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। सो मैं हैम्बर्ग शिफ्ट हो गई थी। मैं यूनिवर्सिटी में ही काम कर रही थी, बट यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप 1 साल उनके जो कंपलसरी मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट करो, और नेक्स्ट ईयर आप रिसर्च में चले जाओ। सो आई चोज टू गो आउट ऑफ Siegen, That's how a journey of Daisy started. and there I started as a researcher in Daisy. Yes. Okay. Yes, your research focuses on optical sensing and thermal imprinting of microstructures for Mm-hmm. advanced applications. So, Mm-hmm. can you walk us through your current research in simple terms for our student listeners who are listening this, who will be listening this podcast? And Uh, okay, so I mean, I like more on the fabrication side, so I wanted to do PhD in something which I can fabricate. I can be more in the lab. So I when I got this topic, so I was quite interested. So because I have different technologies like soft lithography, thermal imprinting, we also have resin 3D printing. We have also very expensive machine which cost millions of euros to make small nano size structures. So I think that is quite interesting for me. And like if I walk through my day, so it's like in the beginning when I was started my PhD, you have to actually spend a quite a lot of time in doing the literature review, because that's how you find out the gap where you actually want to work.
For me, there was something like, okay, at the end I have to make something like this planar structures for sensing applications. Those still say strain sensing, but I work on multiple sensing applications, not only strain. So you have to do literature review. You have to keep reading a lot. You need to keep finding what people are doing in your field, and then you find a gap. You go in the lab, then you see that, okay, what kind of facilities are provided to you, and what kind of collaborations you can have, because it's a big university, so you can have collaborations from different departments. And फिर वहां से then you can just think that, okay, in which direction you want to push in. फिर वहां से जैसे जैसे धीरे धीरे यू टेक स्मॉल स्टेप्स, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ, हाँ ये काम चल रहा है और ये नहीं चल रहा है, सो व्हाट यू कैन डू टू मेक इट वर्क. तो it's and you have to work in the lab for long hours. I did the same for my master thesis as well. I was there in the lab for 13-14 hours because um, sometimes it's on your luck. अगर एक्सपेरिमेंट चल गया तो चल गया, नहीं चला, मोस्ट ऑफ इट रिसर्च में इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है, बट यू हैव टू कीप वर्किंग. यू हैव टू कीप थिंकिंग पॉजिटिव. फिर एक टाइम बाद में जब वो चलता है, देन यू कैन नॉट लीव इट. जस्ट जब भी चल रहा हो, रात को 7 बज रहा हो, रात को 10 बज रहा हो, you just finish that experiment because next day you don't know if that thing will work or not. बट Okay. ऐसा नहीं है कि वो रोबस्ट नहीं है. It's not like it's not robust, but it's something like कुछ चीजें जब चल रही होती है उस टाइम you get the results, and then next day you think that, okay, what made this thing to work and how you can make it like make it more robust, something. But about your PhD, explain them in simple terms. I work mostly to fabricate small structures, macro or nano size structures. So I kind of make waveguides and different shapes and sizes of waveguides, fill them with different materials, couple lined it to it. I also do like for sensing applications, you can directly use it for strain sensing, or you can have collaborations with different departments so that they can have coating of different sensing materials which are sensitive to different applications. So that's how I work in the lab. Okay. Mhm. Yash, what excites you more about your work in PhD position, which is currently in hot HOT, and how have your publications done in reputed journals and conferences shaped your research journey? Mm-hmm. Uh, I mean, in working in hot, it's like I work on multiple projects. I like to keep myself motivated to get results, and definitely when I could publish in some good journals, that helps me to keep on track. That helps me motivate myself that, okay, I'm on track. And the SPI or Clio Munich, this kind of conferences from SPI or Optica, um, it's like I would say it's a good thing when you go to these conferences, and when you go there and talk to people who are working in the same field as yours, and you when you present or your work on big stage, when where scientists from all over the world comes and hears to you, they talk to you, they are very curious. So it gives very good motivation, and it gives me like a self accomplishment that I have achieved something during my PhD. Otherwise, it's a tough journey, but if you trust yourself, I think you can do it pretty well. Also, I'd like to add, it gives you a sense of relief that everybody's on the same plight. And because it's a बहुत lonely है ये PhD जर्नी. कॉलीग्स आपके इतने नहीं होते हैं, आप अकेले ही लगे रहते हो. तो जब आप दूसरी जगह कॉन्फ्रेंस में जाते हो, तो आपको जाके पता लगता है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, इस नाव में और मैं अकेला सवार नहीं हूँ, बहुत सारे हैं. और लोग भी मेरी तरह सफर कर रहे हैं, तो फिर अपनी सफरिंग बेरेबल लगती है. So, for Acropolis student aspiring to research careers, what skills or experience should they start building early for doing research growth in future? I think you can say as well. For being a researcher, you have to start unlearning
the Indian education system, how it is, how it makes you so um, वो आपको डिपेंडेंट ऑन थिंग्स। हाँ, और आप अपने आप से क्यूरियस नहीं होते हो, आप सवाल नहीं पूछते हो, आप जी मैम जी सर ये करना सीख जल्दी जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आप अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी रिसर्च थिंकिंग को आप दबाने लगते हो। हाँ, क्योंकि अ, तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा इन द बिगनिंग। हम लोगों को भी ये अनलर्न करना पड़ा कि कैसे नहीं हम सिर्फ वो जो कह रहे हैं वो मान लें और उनको चैलेंज करें। तो अगर आप सच में रिसर्चर बनना चाहते हैं एक्रोपोलिस में, तो आई वुड से कि आप है ना, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट मत करिए, हम्म। और उसको चैलेंज कीजिए, उसके लिए सवाल पूछिए। यू हाँ, गो और होम एंड, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ा इन द सेंस नॉट ओनली बुक्स बट लिटरेचर रिव्यू भी, आप जो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड है उसके ऊपर यू कैन आल्सो रीड दैट। So, Malika, you are currently a system testing engineer at Hiliti International. This is a यस। quite transition from your research role at DAISY and Lebanese Institute for Crystal Growth. What drew you to move from pure research to an individual testing role? And how are you applying your research background in this position? Okay, I'm working currently in embedded systems in an R&D department of automotive company. We work closely with customers like Mercedes and BMW, Audi and Volkswagen. I have two major customers whom I work closely with. So when you are in research, you're working for yourself, for your own uh, research, and maybe sometimes you can find yourself amidst intangibility. जब आप शोध ज्ञान का काम कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई राह समझ नहीं आती है, और जो जो आपने लक्ष्य बांधा है वो कभी कभार आप हासिल ही नहीं कर सकते, और कभी कभार वो हासिल होने की चेष्टा करते हैं, कभी कभार वो हासिल होने का आभास होता है। तो ये एक बहुत ही लोनली पाथ है, तो जहाँ पे आप करते हैं। वेरएस जब आप इंडस्ट्री में रिसर्च करते हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है कि जो हमारे ग्राहक हैं उनका सेटिस्फैक्शन, उन वो खुश, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, हम लोग उसको बेस लाइन से सीरीज प्रोडक्शन तक लेके जाते हैं, वो खुश तो हम खुश, आगे बढ़ो, है ना। तो एक टेंजिबिलिटी का एहसास होता है। बट वाज इट अ ट्रांजिशन फ्रॉम योर? तो बट ट्रांजिशन कुछ नहीं है, रिसर्च में यहाँ पे भी कर रही हूँ, रिसर्च में वहाँ पे भी कर रही हूँ। अब मेरे साथ बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं, जैसे कि मर्सिडीज और आउडी। उन लोगों से मिलना होता है, उन लोगों के रिक्वायरमेंट्स को समझना होता है, उनका कस्टमर रिक्वायरमेंट से टेस्ट केसेस बनाने होते हैं, इलेक्ट्रिकल लैब सेटअप करनी पड़ती है, लैब को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है, बहुत सारा डेटा एनालिसिस का काम है। बट जैसे आपका और मैं क्वेश्चन, आपका सवाल भूल चुकी हूँ। बट जब आपका क्वेश्चन था पहले ना कि एक्रोपोलिस ने कैसे हेल्प किया रिसर्च में, आई थिंक शी इज द परफेक्ट एग्जांपल हाँ, फॉर दैट। यस। क्योंकि इसने जो एक्रोपोलिस से नॉलेज लिया शी इज यूजिंग इट, यस। एंड जो रिसर्च में एक्सपीरियंस लिया दैट शी इज कंबाइंड विद दैट नॉलेज। सो मुझे इसलिए अपॉइंट किया गया इस कॉरपोरेशन पोजीशन। में, क्योंकि मेरे उनको एक फिजिसिस्ट चाहिए था, इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए फिजिसिस्ट चाहिए था। अब आप ऐसा सोचो कि सामने वाला ऐसा क्यों सोचता है कि उन्हें एक शोधकर्ता चाहिए एक इंजीनियरिंग की पोजीशन के लिए। वो इसीलिए क्योंकि आप है ना चैलेंज कर पाते हो, आप कस्टमर को भी चैलेंज कर पाते हो। अगर वो कुछ भी बोले तो आप उनको समझ के आप बोल पाते हो कि पर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, रियलाइजेशन उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है कि नहीं है।
और एग्जैक्टली मैं आपका सवाल भूल चुकी हूँ, तो एक बार देख लेना आप। No, no, it's completed. It's completed. ओके गुड। Okay. Now, my question from both of you is, what's the biggest challenge you faced in adapting to a new academic and work culture in Germany? Uh, ये सोच के ही हमें आंसू आ जाते हैं। देखो बहुत बड़ा शिफ्ट है वर्क कल्चर में, वर्क कल्चर में। एकेडमिक्स में। यहाँ पे इसको जैसे बताने दो। जैसे इंडिया मैक्रोपोलिस में इट्स स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ पता है आपको कि ये कोर्सेस है, आपको ये फिनिश करना है, आपको इतने स्कोर आ गए, यू फिनिश्ड विद दैट कोर्स एंड यू आर डन। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे कुछ कंपलसरी कोर्सेस है, वो करने ही है आपको, बट यू बट चूज योर ओन पाथ कि आपको किस में इंटरेस्ट है, और उस हिसाब से देन यू हैव टू। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, इट्स लाइक अ पूल, एंड आपको वहां जाके फिर एक पिकअप करना है, वहां से सिलेक्टिव होना है सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो शुरू में बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि हम्म, इतना क्लैरिटी नहीं आती है एज अ स्टूडेंट आपको, कि आपको इतना फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो आप, आज डाउन 5 years डाउन द लाइन और 6 year डाउन द लाइन। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत टफ वन चैलेंजिंग था उस टाइम पे। जब आप ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपके पास जो कंपलसरी मॉड्यूल्स होते हैं वो गिने चुने होते हैं, देयर आर ओनली 2 4। बट उसके बाद आपके रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर्स आप क्या करोगे, दैट कम्स बिकॉज तब आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना पड़ता है कि आपको आगे जाके क्या पढ़ना है। सो उस हिसाब से आपको कोर्स मॉड्यूल चुनने पड़ते हैं। एंड इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, आई मीन डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। अगर आप ज्यादा हैंडल कर सकते हो, यू कैन टेक एज मेनी कोर्सेज एज यू वांट एंड यू कैन फिनिश योर मास्टर्स सून एज वेल। So it depends on you actually how much you can handle. एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप इंडिया में रहते हो, आप बहुत ही अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हो, आप खुद से कुछ काम करना नहीं सीखते। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको अपना पूरा खुद सब खुद सीखना पड़ता है। आपको सारा अपनी पूरी लाइफ मैनेज करनी सीखनी पड़ती है। फॉर्चुनेटली हम घर से बाहर इंजीनियरिंग के तुरंत बाद निकल गए थे, तो हम लोगों ने वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। Hmm. तो वो But I mean, in the beginning, parents ने help किया financially, they were there. But later on, क्योंकि हमको भी पता है, even though today as well I'm earning well, she's earning well, but हम घर पे बोलेंगे तो वो मना नहीं करेंगे हमको कुछ भी financial help के लिए। But it's like हमको ऐसा था कि we want to be more independent. That's why we started doing सो work हम here. लोगों ने और जॉब्स किए, हम लोगों ने बहुत सारे रेजिलियंस जॉब किए, ताकि हम लोग अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड कर पाए, जो रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए विदाउट पेरेंट्स हेल्प। तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर लाइफ टुगेदर हियर Mm. ना। और काफ़ी, आई वुड नॉट से इट वाज चैलेंजिंग एट ऑल, इट वाज सो मच फन, सो मच फन। वी आर वेरी प्राउड कि हम लोगों ने वो एंजॉय किया है, Mm. बिकॉज बहुत लोगों को चैलेंजिंग होता है। एंड बहुत। एक्चुअली मैनी मैनी पीपल उनको, जैसे मलिका यहाँ थी तो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट था टू स्टे या हियर, बट बहुत सारे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो दे गो बैक अगेन टू इंडिया, या क्योंकि उनको यहाँ पे वेदर नहीं है जैसे इंडिया में होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक जैसे बैचलर्स में या जैसे वहाँ इंडिया में फ्रेंडशिप्स होती हैं। तो इसलिए टफ है यहाँ पे रहना, यहाँ पे बाहर सरवाइव करना। बट इफ यू हैव लाइक फाइंड अ गुड पार्टनर, it's it's worth it to stay here. इवन इफ यू डोंट लुक फॉर अ गुड पार्टनर हियर, बात यह है कि वर्क कल्चर यहाँ का डिफरेंट है। आपको यहाँ पे लोग बहुत डायरेक्ट है हम्म, और फेयर है हम्म, और ऑनेस्ट है। इंडिया का डिफॉल्ट ये होता है, सॉरी बट ऐसा होता है कि इंडिया में मिसट्रस्ट इज द डिफॉल्ट। आप किसी को मिलते हैं, आप उसको फर्स्ट ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ का डिफॉल्ट ये है कि आपको वो सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं, देन इट बिकम्स मोर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनका जो विश्वास है उसको बनाए रखें, और उनकी जिस और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है, आप वो वर्क एथिक्स सीखें। है ना, पंक्चुअलिटी इम्पोर्टेंट है,
आप जो काम मुंह से बोल दिया गया है, कमिटमेंट आपने कर दिया है, और आपको बहुत स्पेस भी मिलती है, आपको हर चीज को जी जी करने की जरूरत भी नहीं है। जो आपको पसंद नहीं आता आप मना कर सकते हैं, वो उस चीज की आपको आपको अच्छा इंसान मानते हैं अगर आप समझते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, क्या And करेंगे people अपनी are लाइफ। very hard working here. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, आपको पता होना चाहिए आपको क्या पसंद है क्या नहीं। आपको हाँ या ना बोलते आना चाहिए, पर एक बार जो आपने बोल दिया कि हम ये काम करेंगे तो वो करना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग बहुत अलग हैं, इतने ओपन माइंडेड हैं, पर एट द सेम टाइम थोड़े से कोल्ड भी हैं। पर वो सब उस आप पे डिपेंड करता है क्योंकि How do you deal with them? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने यहाँ पे भी अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया है, अपनी लाइफ बना ली है। और अब इंडिया में हमको आना फॉरेनर जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ में हम ढल चुके हैं, तो वहाँ पे वापस ढलना मुश्किल रहेगा। तो एकेडमिक में भी काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और वर्क लाइफ यहाँ की वर्क एथिक्स और बहुत यहाँ स्ट्रिक्ट पे है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ लैब्स, एक्सपेरिमेंट्स, मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप यहाँ पे जो आप कंपनी में जाके काम करोगे वही सेम मशीन आपको यूनिवर्सिटीज में भी मिलेगी। तो आप एक्चुअली यू कैन गेट गुड एक्सपीरियंस विद दैट। और बहुत हैंड्स ऑन है, क्योंकि आपको ये नहीं कि एक ग्रुप खड़ा है और इतना बड़े 10 लोग हो गए और एक टीचर वो करके दिखा रहा है और बस आपका कोर्स हो गया। आपको खुद लगना पड़ेगा वो मशीन में, खुद चीजें तोड़नी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ सीखते हैं, और आपको सीखने की वो मौका दिया जाता है। मैं डेजी में काम करती हूँ, थी। डेजी एक बहुत बड़ा सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी है। एक एक पार्ट मिलियन ऑफ यूरोस का है। एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्सरसाइज कॉशन, बट एट द सेम टाइम यू गेट दैट, वो जो बीम लाइंस होती हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टेशंस बने रहते हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड फैसिलिटीज में आपको रात भर छोड़ दिया जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट करो और रिजल्ट ला के दिखाओ। तो काफी इट्स अ गुड एक्सपोजर काफी एक्सपीरियंस, है। इट्स अ गुड As एक्सपीरियंस। it's our first couple podcast, so one last ओह, question from both of you. That one thing, both of you tell us that one thing that you admire most about each other as professionals and as individuals. good. That you said professional. Um, oh, I admire Yash greatly since the time we met, since the time we started industrial. So actually, we started dating when we were in industrial, this thesis, a bachelor thesis. So I admire from the day one how curious he is, how hardworking he is, and when he sets his mind, and now I'm looking at him doing his research and he's inspiring me every day. uh, वो है ना अर्जुन, मीन की आंख को देख लिया और वहां पे लक्ष्य साधना है, उसका ध्यान ऐसा है और इधर उधर कहीं नहीं जाता। तो बहुत फोकस से और बहुत स्ट्रगल भी करता है वो, यश। बट वो भी मुझे देखने के लिए वो काफी इंस्पिरेशनल है कि आपको अपना जब कुछ आपने लक्ष्य साध लिया है तो फिर आपको मेहनत भी उतनी करके दिखानी पड़ेगी। तो आई एम अ फैन, मैं क्या बोलूं। आई एम अ फैन ऑफ हर एज वेल। शी इज नॉनसेंस। ये बहुत नहीं, इट्स नॉट नॉनसेंस। मलिका इज लाइक शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन इसका प्रोफेशनली। प्रोफेशनली, हाँ, इसका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। शी इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मैंने जब शुरू से इसको देखा है ना, ये बहुत, इसका अगर आप लैंग्वेज ले लो, शी लर्न्स लैंग्वेज very quickly. Her accent, you can check her accent when you meet. कोई सा भी हो German, she speaks so fluent German. और and like दैट्स नॉट professional, it's a professional thing. ओके। And it helps her finding like न्यू good jobs, new अपॉर्चुनिटी। opportunities here. And I mean, when I look at her, she's not only doing job, but she also is pursuing her dance as well.
तो मैं देखता हूँ कि कैसे बैलेंस करती है और ये चीज़ों के बीच में, एंड स्टिल Surely. कीप्स वेरी मोटिवेटेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में। और इंडिविजुअली हम लोगों की बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग रही है राइट फ्रॉम वर्किंग इन एक्रोपोलिस। मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाती हूँ, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू इट। काफी ओपन माइंडेड है। तो वो काफी वर्क किया मैंने, हम लोगों ने जर्मनी का पता किया, हम लोगों को मैंने अपने अंकल से बात करी, सब चीज पता करी। ओके लेट्स गो टू जर्मनी, ओके लेट्स गो टू रिसर्च, यस लेट्स, देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बहुत कन्विंस नहीं करना पड़ता किसी भी चीज के लिए, और बहुत इजीली थिंग्स, हमारी बहुत आसानी से सारी चीजें सेटल होती है। या और हम लोग अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रखते हैं। हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा एक दूसरे को इन्वॉल्व नहीं एजुकेट होते नहीं करने ज्यादा। की Any कोशिश other करते। thing that you want to speak uh, about yourself or your journey in आप Acropolis? पूछो ना, आप पूछो, रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, वी डोंट केयर। आपको कुछ पूछना, आपको हमको देख के क्यूरियोसिटी हो रही है, हमको आपको देख के, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी है आपको लेके। मेरा पहला क्वेश्चन है, why हम्म। if there was no family background in Germany, then which country will you be choosing for studying abroad? यूएस में जाना, इट्स आई मीन और अब लोग हम लोग जाते हैं, बट यूएस अगर कंडीशन देखी जाए, जैसे मेरे फैमिली, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास, तो वहां पे इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट यूएस के लिए लाना, मैं पापा को बोलता, पता नहीं शायद वो लेके भी आते, कर देते कुछ ना कुछ कहीं से, बट मेरे को लगा कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं जर्मनी जाके आई कुड अचीव द सेम, और यहाँ पे, या एंड आई हम थिंक। लोग यूरोपियन कंट्री में रहे हैं, बट हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया है। हमें घूम फिर के यही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके हम लोग ने मेहनत करके ढले हैं इसके माहौल में। हम्म। और कोई और कंट्री देखा जाए तो पढ़ाई के लिए एक कौन से सेक्टर में पढ़ना है हाँ, वो वो भी भी बहुत डिपेंड करता है। इम्पोर्टेंट है। यूएस तो इट्स ओवररेटेड ऑनेस्टली। आपको जो, क्योंकि अभी हमारे यश भी होके आए हैं यूएस में कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड की बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस है वो। एंड वी आर वेरी प्राउड दैट he's gone and presented his paper। पर अब यहाँ रह के हमको यूएस का कुछ भी ऐसा नहीं लगता। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा हर जगह नहीं है, ट्यूशन, मतलब जर्मनी में है। जर्मनी में ट्यूशन फी नहीं है इंजीनियरिंग बट दैट डजेंट कोर्सेज, मीन, रिसर्च कोर्सेज में। दैट डजेंट मीन कि ट्यूशन फी, मतलब बेसिक आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, बट इट्स नॉट एक्सपेंसिव एज इन यूएस। द हाँ, सेम काइंड ऑफ फीस स्ट्रक्चर, जो जितना फीस आप इंडिया में पे करते हो, यू हैव टू पे इट हियर। वो भी वापिस आ जाता है, वो भी वो बहुत। भी स्टूडेंट्स को आप कुछ ना कुछ तरीके से आप, यू कैन रीएम्बर्स इट। तो पॉसिबिलिटी है, बट तो पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में ही हो आई बिल्कुल। थिंक यूरोपियन कंट्रीज, अगर आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है तो पेरिस आई थिंक बहुत है, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है। और अगर आपको फिजिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम बहुत नेदरलैंड्स है, अच्छा है। बेल्जियम है, बुडापेस्ट है। अगर आपको आईटी वगैरह पर में फिर करना भी है। आपको कौन से सेक्टर में पढ़ना है? अगर आपको रिन्यूएबल में पढ़ना है तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत रिन्यूएबल में काम कर रही हैं। अगर आपको मेडिटेक में पढ़ना है तो साउथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया बहुत काम कर रही है। एंड द गुड थिंग इज, अगर आप यूरोपियन कंट्री में एक में भी किसी में आते हो, बिकॉज इट्स यूरोपियन यूनियन, तो आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हो, आप इधर उधर जा सकते हो। आप यूएस जाते हो तो फिर यूएस में रहते हो, दो इवन दो इट्स बिग, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज यूरोप में आपको एज बीइंग ए यूरोपियन यूनियन बहुत फैसिलिटीज Yeah, so मिलती है। once you obtain a work permit and then you can move around the whole European Union if you want। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बट आप और पूछो। That's all from my side till today because I have not researched more. ओह, So ओके। thank you for coming with us and letting us learn about more about you and your journey and research about what you have done in Acropolis and in what you are doing currently in Germany. हम्म।
Thank you so Thank you so much for much. having us.